પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર જુદી જુદી જાતિ જૂથો વચ્ચે ફૂટ પાડવાનો અને તેને નબળા બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કોંગ્રેસ પાર્ટી પર જુદી જુદી જાતિ જૂથો વચ્ચે ફૂટ પાડવાનો અને તેમને નબળા બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। મહારાષ્ટ્રના ધુલેમાં એક રેલીમાં બોલતા પીએમ મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે કોંગ્રેસે ઐતિહાસિક રીતે અનુસૂચિત જાતિઓ એટલે કે એસસી, અનુસૂચિત જનજાતિઓ એટલે કે એસટી અને અન્ય પછાત વર્ગો એટલે કે ઓબીસી સહિતના પછાત સમુદાયોની પ્રગતિનો વિરોધ કર્યો છે। પીએમ મોદીએ હાઇલાઇટ કર્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની રણનીતિ એક જાતિને બીજી જાતિ સામે જાતિવાદ ઊભો કરવાનો છે, જે આ સમુદાયોને એક થવાથી અને તેમની સામૂહિક શક્તિને સમજવાથી રોકે છે। તેમણે જણાવ્યું કે આ વ્યૂહરચના કોંગ્રેસના રાજકીય પ્લેબુકનો સતત ભાગ રહી છે, જે પછાત જૂથોને વિખેરેલા અને નિષ્ક્રિય રાખીને પોતાનું પ્રભુત્વને જાળવી રાખવાનો ઉદ્દેશ્ય ધરાવે છે। પ્રધાનમંત્રીએ કોંગ્રેસના અનામત નીતિઓના વિરોધનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે એસસી, એસટી અને ઓબીસી સમુદાયોને ઉન્નતિ કરવાથી રોકે છે। તેમણે કોંગ્રેસ પર આ નીતિઓને નાબૂદ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, જે ઐતિહાસિક રીતે પછાત જૂથોને શૈક્ષણિક અને રોજગાર તકો પૂરી પાડવામાં મહત્વપૂર્ણ રહ્યા છે। પીએમ મોદીએ એસસી, એસટી અને ઓબીસી સમુદાયોને કોંગ્રેસની વિભાજનકારી રણનીતિઓ સામે સાવચેત રહેવા અને એકતા અને પ્રગતિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવા માટે અનુરોધ કર્યો। તેમણે પુનરાવર્તન કર્યું કે બીજેપી સરકાર તમામ પછાત સમુદાયોના સશક્તિકરણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે અને તેમના વિકાસને નબળા પાડવાના કોઈપણ પ્રયાસોને મંજૂરી આપશે નહીં। પીએમ મોદીના નિવેદનો મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીના સંદર્ભમાં આવ્યા છે, જ્યાં જાતિ ગતિશીલતા ઘણીવાર મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે। પછાત સમુદાયો વચ્ચે એકતા માટેનો તેમના સમર્થનમાં એકત્રિત કરવા અને પ્રદેશમાં કોંગ્રેસના વિરોધ કરવા માટે આહ્વાન કરવામાં આવે છે। પ્રધાનમંત્રીએ આપેલા ભાષણને કારણે ભારતીય રાજકારણમાં જાતિની ભૂમિકા પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે, જેમાં ઘણા લોકો દેશના સામાજિક તણાવ પર આવી વિભાજનકારી વ્યૂહરચનાઓના લાંબા ગાળાના પ્રભાવ પર પ્રશ્ન ઉઠાવી રહ્યા છે। ચૂંટણી અભિયાન ગરમ થાય છે, જાતિ આધારિત રાજકારણનો મુદ્દો વિવાદાસ્પદ વિષય તરીકે રહેવાની શક્યતા છે। आज मैं आपको और पूरे देश को कांग्रेस और उसके साथियों की एक बहुत खतरनाक साजिश से आगाह करने के लिए आया हूं और इस आदिवासी क्षेत्र में आया हूं तब मेरा ये कर्तव्य बनता है इस खतरनाक खेल से मैं महाराष्ट्र को, देश को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को सजग करूं। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बहुत मुश्किल से बाबा साहब दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करा पाए, उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई
उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। उनका भी मकसद यही था कि किसी भी कीमत पर एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व न मिल पाए। ये लोग चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा कमजोर रहे। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी ने भी ओबीसी आरक्षण का खुल करके विरोध किया था। ये लोग जानते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी अगर ये समाज मजबूत हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान का शटर गिर जाएगा। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे ताकि एससी समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज भी अलग अलग जातियों में बटा रहे ताकि ओबीसी के तौर पर उनकी जो एकजुटता की पहचान बनी है, ये ओबीसी अगर ओबीसी रहे तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। ये ताकत न बढ़े इसलिए ओबीसी समाज को भी जातियों में बिखेर दो। इसलिए वो ओबीसी को भी अलग अलग जातियों में बांटने का खेल कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि हमारा एसटी समाज अलग अलग जातियों में बटा रहे, क्योंकि आज आदिवासी के रूप में, जनजातीय समूह के रूप में, शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में समाज की एकता, समाज की एक पहचान, समाज की एकजुटता आज उभर करके आई है और वो मजबूती से अपनी आवाज उठा न पाए, इसलिए उनको भी छोटी छोटी जातियों में बिखेर दो। यहां धुले के इस क्षेत्र में हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमित, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदिवासी जातियां रहती है। कांग्रेस भीलों को कोकना से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस भील गरासिया को कोकनी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली महादेव आदिवासी जाति को डोंगर कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस वारली आदिवासी जनजाति को ठाकर आदिवासी जनजाति से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कोली ढोर को टोकरे कोली से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस गमित को गमता से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस
गवित को पारधी से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस कटकरी को धानका से और तड़वी को तैतरिया से लड़ाना चाहती है। साथियों, आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है।